Good morning, all of you. Welcome. Today we start with a new chapter of social studies. That's lesson 16. It's a part of economics. And the name of this chapter is, as you can see, economic liberalization and globalization. But yes, here we would add one more word: economic liberalization, privatization, and globalization. So in short, you can call it as LPG. Now, when India became independent in 1947, our government accepted a path of planning to achieve speedy economic development. Now, these three words LPG, they are the reforms. That is, reform means the thing is already formed, we are reforming it. We are going to now present it in a better way than what it was before. So at the time of independence, what we saw was that India was totally shattered economically, and we saw that there was lots of unemployment, poverty, cottage industries were destroyed. So economy was very much low and poverty was more, yes. And that was due to unemployment and many other reasons. But then after independence, our government decided to pick up such a path of planning which would lead country towards speedy development in the economy. And thus it took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5-year plans one after the other. तो ऐसे बहुत सारे 5-year plan अब तक हमने complete कर लिए हैं. Now this 5-year plan, that is, for example, now that in 10th standard you are, तो बच्चे या naturally along with you your parents, they plan out for you, that is एक timetable frame होता है that what is going to be done on which particular day or where you are very weak, तो उस सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पे मेहनत ज़्यादा होगी. उसी तरह से ये जो 5-year plans हैं वो ओवरऑल एक प्लानिंग सिस्टम है हमारी कंट्री की, जहाँ पे डिसाइड होता है कि इन 5 सालों में कमिंग 5 years व्हाट वी आर डिसाइडिंग टू अचीव, और उस अचीवमेंट के लिए, उस डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है और कौन से एरिया में ज़्यादा वर्क करना है, लाइक डेवलप द रोड्स और डेवलप द इंडस्ट्रीज. So there were many points, weak points, which we had to make it strong. और इन 5-year plans के अलावा हर साल का भी एक प्लान बनता था. फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा गोल 10th में है, से अचीव 80-85 एज पर योर थिंकिंग. सपोज दैट यू वांट टू अचीव मोर देन 80%, तो वो एक 1 year का गोल हुआ, 10th standard का गोल. बट फॉर दैट you are going to frame a timetable, you are going to plan out. तो फिर तुम्हारा होगा हर मंथली प्लान, दैट इज इस महीने में जो सिखाया है वो रोज़ का रोज़ करना है, कैसे कहाँ पे तुम्हारा इनपुट ज़्यादा होगा, कैसे वर्कआउट करोगे रिलेटेड टू योर वेरियस सब्जेक्ट्स एंड द चैप्टर्स. सो दैट इज़ योर मंथली प्लान. फिर जाके वो तुम्हारा ईयरली प्लान सक्सेस में बदलेगा. सिमिलरली 5-year प्लान तो बना लिया हमने, बट ईयरली प्लान भी होते हैं जहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच ईयर दे सी वेदर एज पर दैट 1-year प्लान द अचीवमेंट वॉज टारगेटेड, वॉट एवर वी हैड टारगेटेड, डिड वी अचीव इट और नॉट. फिर अगर कोई लूप होल्स हो, जैसे कि कुछ खामियां रह जाती है, जैसे 5 साल खत्म हुए, हमने रिव्यू किया, हमारे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने और प्लानिंग कमीशन ने, दे वेंट थ्रू आफ्टर द 5 years, दे टेक टाइम टू रिव्यू कि भाई ये 5 साल के प्लान के बाद क्या उन 5 सालों में हमने सारे जो हमारे पॉइंट्स थे वो कवर किए हैं, आर वी सक्सेसफुल इन ईच एंड एवरी योर प्लान, each and every field have we achieved whatever we wanted as per a 5-year plan. और naturally कुछ तो बाकी रह ही जाएगा. तो अगर कुछ रह जाता है पीछे, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं,
It happens with everyone, whether it is 1 week plan, 1 year plan or 5 year plan. कुछ तो पीछे छूटना ही है, तो वो चीज़ हम ऐड करेंगे हमारे नेक्स्ट 5 year plan में, right? So that is we started implementing on a 5 year plan, one after the other, so that हमारी इकोनॉमी स्पीडीली डेवलप हो, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो. फिर हमने पॉलिसीज़ बनाए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सारे हम अनाउंस करने लगे. दिस वी विल बी डूइंग लेटर ऑन इन डिटेल. आई विल एक्सप्लेन यू, बट इन शॉर्ट एट प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू मनी. It could be said as the policy related to the income and expenditure. तो ये सारी पॉलिसीज हमने बनानी शुरू की. इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाई कि किस तरह से कौन सी इंडस्ट्रीज कितने टाइम पीरियड में हमें डेवलप करनी है, व्हाट शुड बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो अलग अलग ये पॉलिसी हमने अनाउंस की. नाउ ऑल्दो मेनी ऑफ दिस प्लान्स वर कंप्लीटेड, सक्सेस वॉज नॉट अचीव्ड. हमने बहुत सारे प्लान्स ख़त्म तो कर दिए, लेकिन जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए था, जो हमने प्लान में रखा हुआ था, जो लिखा गया था 5 year प्लान्स में, अलग अलग 5 year प्लान्स में, दैट दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू अचीव एट द एंड ऑफ 5 year प्लान. और इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा काम होगा, लेकिन हर एक फील्ड में हमें चाहिए था उतना सक्सेस तो मिला नहीं, राइट? Hereby गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड, मतलब गवर्नमेंट ने फिर रिसर्च शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस फेलियर्स, एंड डिसाइडेड टू गिव अ न्यू फेस, दैट इज अ न्यू फॉर्म टू डिफरेंट पॉलिसीज. पॉलिसी जो ऑलरेडी बन चुकी थी उसको हमने एक नया रूप दिया, एक नया फॉर्म दिया, एक नए तरीके से हमने प्रेजेंट किया उन पॉलिसीज को. सो गवर्नमेंट देन डिसाइडेड और डिटरमाइंड to give new form to different economic policies in order to rectify the errors that we had done in the past. तो जो errors मतलब कि जो भूल हमने पास्ट में की थी अलग अलग 5 year प्लान में, वो अब डिसाइड हुआ कि ये नहीं होना चाहिए. उसका रेक्टिफिकेशन हम कैसे करें, मतलब वो भूल कैसे सुधारें, राइट? एंड इन दैट रिगार्ड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 such economic reforms were implemented which could make our economy strong. We could then achieve speedy development in our country, and these 3 policies are termed as, or these 3 reformation policies are termed as LPG, right? So here you can see just that how we targeted at various things in various fields, what to achieve, within what time period should we achieve. तो एक टारगेट हमने किया और काफ़ी कुछ बदलाव आया इन 3 पॉलिसीज़ की वजह से हमारी कंट्री में. नाउ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया वॉज एक्चुअली स्टार्टेड इन 1991 बाय हमारे तब के जो PM थे नरसिंह राव. एंड दिस मैन वॉज, दैट इज दिस ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर राव, हमारे जो PM थे उस टाइम के. ही वॉज ऑफन रिफर्ड टू एज चाणक्य. यू ऑल मस्ट बी नोइंग चाणक्य नीति एंड द स्मार्टनेस विथ विच ही डेल्ट विथ. सो ही वॉज ऑफन रिफर्ड एज चाणक्य फॉर हिज एबिलिटी टू steer means to face and pass through tough economic and political legislations through the parliament at a time when he headed a minority government. तो वो हर बार अपनी बहुत ही स्मार्टनेस से उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया था, एंड ही ब्रॉट दिस इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो. एंड दिस LPG led to increased competition in the sectors like banking, leading to more customer choice, increased efficiency. अब जैसे कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों चीज़ों ने किस तरह से हम कह सकते हैं कि वो कंपटीशन ले आए. तो लेट्स गिव मी, आई शैल गिव यू वन एग्जांपल दैट
At the time of independence, that is from 1947 to 1990s, हमने ज़्यादातर हमारी गवर्नमेंट ने सब कुछ वो खुद हैंडल करती थी. लाइक वी सॉ इन वन ऑफ द इकोनॉमिक चैप्टर, सोशलिस्ट कंट्री, और एक दैट इज सोशलिस्ट मार्केट सिस्टम, और एक मैकेनिज्म था कैपिटलिस्ट सिस्टम. तो हम ज़्यादातर फॉलो करते थे सोशलिस्ट सिस्टम. मतलब कि बहुत सारे फील्ड्स डेवलपमेंटल एरिया के गवर्नमेंट के हाथ में थे, लाइक रेलवे, ऑल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट हैंडल करती थी. और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बहुत कम कंपनीज थी, तो लोगों को बहुत सारी वैरायटी नहीं मिल रही थी. ठीक है, कंपटीशन भी इतना था नहीं. कंपटीशन गवर्नमेंट में नहीं होता, हमेशा प्राइवेट कंपनीज में रहेगा, राइट. तो लोगों के पास चॉइस कम थी, एफिशिएंसी इतनी थी नहीं, क्योंकि लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते. सो दैट वाज लाइक 10 to 5 जॉब, and no innovative ideas were put in front of the government by these people who were the government servants. But the moment when you work for your own private sector, when you work for your own private company, it happens that जो भी नई आइडियाज़ आती हैं तुम रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हो. यू ब्रिंग इन इनोवेटिव आइडियाज़, तुम कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हो, एंड यू ट्राई टू बी द बेस्ट इन द मार्केट. तो एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है, और बाहर की दुनिया में कस्टमर्स के पास चॉइस आ जाती है, राइट. एंड द वन हु इज़ द बेस्ट, आई वुड से, या एटलीस्ट बेटर देन द अदर, वुड बी द चॉइस ऑफ द कस्टमर. तो धीरे 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 गवर्नमेंट ने ये 3 रिफॉर्म जब हमने ऐड किए 1991 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैंड ओवर कर ली टू द प्राइवेट कंपनीज, जो आज हम देख सकते हैं, राइट. जैसे गवर्नमेंट की स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, तो वो हुआ सोशलिस्ट सिस्टम. लेकिन उसके सामने गवर्नमेंट ने 1991 के बाद अलाउ किया प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन लाइक वॉल्वो बस. फिर हमारे पास प्राइवेट कैब्स हैं, तो वो हुआ मार्केट मैकेनिज्म, गवर्नमेंट का है BRTS. देन यू हैव प्राइवेट कम्युनिकेशन पैटर्न्स लाइक वी हैव एयरटेल एंड जियो एंड ऑल, जबकि गवर्नमेंट का भी एक खुद का है BSNL. सो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैंड ओवर की टू द प्राइवेट कंपनी, जो खुद तो बहुत कमाने लगे, कंट्री डेवलप होने लगी, लोगों में सेटिस्फैक्शन दिखने लगा, दे स्टार्टेड गेटिंग चॉइस इन द मार्केट. एंड लाइक बिफोर 1991 वी नेवर सॉ लाइक मैकडोनल्ड्स एंड यू कैन से बहुत सारी ऐसी, जैसे शूज़ रिलेटेड यू कैन कॉल Reebok and Nike, and कपड़ों के रिलेटेड बहुत सारे स्टोर्स एंड ऑल वी नेवर हैड इन आवर कंट्री. इट वाज ओनली आफ्टर 1991 ग्लोबलाइजेशन पे हमने फोकस करना शुरू किया. और तो फर्स्ट लिबरलाइजेशन की गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल बनी, पहले लिबरल नहीं थी गवर्नमेंट. 1991 के पहले गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में, बहुत एक लंबी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती थी. A man who wanted to start his own private company, और by the end of that completing that long procedure, फिर अगर वो कंपनी नहीं चलती तो उसको बंद करने के लिए एक लंबी प्रोसीजर फॉलो करो गवर्नमेंट में, फिर और एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट करो, उसके लिए फिर एक लंबा एक प्रोसेस. तो पीपल ऑलवेज डिसाइडेड कि इससे अच्छा है कि हम जॉब कर लेते हैं. नाउ तो नेचुरली कंट्री की डेवलपमेंट स्लो थी, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन वन हैंड, नो प्राइवेटाइजेशन, और गवर्नमेंट की इनकम भी नेचुरली कम, क्योंकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान देती थी, लाइक BRTS, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक स्कूल्स एंड ऑल दिस थिंग. तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज जैसे चार्जेस नहीं लगाती थी, और लगा भी नहीं सकती. गवर्नमेंट इज़ फॉर सोशल वेलफेयर. अब 1991 के बाद जब गवर्नमेंट लिबरल बनी, तो ये जो प्रोसेस थे लंबे कंपनी स्टार्ट करने के एंड मैनी अदर थिंग्स, वो सारा एक शॉर्टन अप होने लगा.
एंड लाइसेंस लेना भी बहुत ज़रूरी था इमीडिएटली फॉर सम ऑफ दी कंपनीज ओनली. तो लोग थोड़े रिलैक्स्ड होने लगे, और जब तुम थोड़े मेंटली स्ट्रेस्ड अप नहीं रहोगे तो नेचुरली इनोवेटिव आइडियाज़ और ज़्यादा आएगी. यू विल वर्क बेटर फॉर योर ओन प्राइवेट कंपनी एंड यू विल गिव मोर टाइम टू योर कंपनी और टू योर फील्ड विच इज़ प्राइवेट. और तुम जी जान लगा दोगे अपनी कंपनी को बेस्ट बनाने में, खूब पैसे कमाने में, और फिर वही पैसे से हम टैक्स भी ज़्यादा भरेंगे. जितना ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स पे करेंगे. तो गवर्नमेंट भी डेवलप हो रही थी, गवर्नमेंट के पास टैक्स की इनकम बढ़ने लगी, विथ विच स्टार्टेड डेवलपिंग द कंट्री, राइट. क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के पास तो पैसे नहीं होते. तो गवर्नमेंट हमसे, प्राइवेट कंपनी से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो पैसे यूज होते हैं हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में. तो हमारी कंट्री 1991 के बाद इकोनॉमिकली स्पीडीली डेवलप होने लगी. लोगों में भी एक सेटिस्फैक्शन दिख रहा था मार्केट में, एंड सेलर और द बायर और द प्रोड्यूसर all were happy, all were progressing. Country itself was, and even today is moving towards development due to this free reform. अब जब प्राइवेटाइजेशन आया तो नेचुरली मतलब गवर्नमेंट लिबरल बनी कि भाई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो आप, तो और यू कैन चार्ज द प्राइस यू वांट, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर, सेम लाइक मार्केट मैकेनिज्म. फिर गवर्नमेंट ने जब ये दो अलाउ किया तो नेचुरली एक लिबर्टी, एक फ्रीडम मिली ग्लोबलाइजेशन में. पहले ग्लोबलाइजेशन में हमने एंट्री ली ही नहीं थी. वी यूज्ड टू जस्ट बी इन टच विद इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विद सम ऑफ दी नेबरिंग कंट्रीज. तो उससे तो हमारा डेवलपमेंट होता नहीं था, लाइक एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग समथिंग टू एंड फ्रॉम से नेपाल या भूटान एंड सम नियर बाई स्मॉल अदर कंट्रीज. But now in globalization we started connecting with the world market. तभी जाके तुम देख सकते हो मार्केट में variety of stores, like where most of the Indians are very much attracted towards, like foreign companies के shoes and garments and lot many things. ऐसे टेक्नोलॉजी ऑल्सो हम बाहर की ही अपना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में. तो ये और हमारी जो मार्केट में हम जो प्रोड्यूस करते थे वो हम एक्सपोर्ट करने लगे उन सारी कंट्रीज़ को. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड LPG, राइट. नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. लेट्स सी व्हाट इट इज. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इन शॉर्ट. लेट्स सी व्हाट डज इट मीन इन डिटेल. Now, गवर्नमेंट ग्रेजुअली, अब एक साथ तो सारी फ्रीडम तुम्हें एट द एज ऑफ 5 और 10 तुम्हारे पेरेंट्स देंगे नहीं कि भाई हाँ तुम रात को 8 बजे भी आ सकते हो, 9 बजे भी घर में आ सकते हो, चाय भी लेके चले जाना. यू गेट ऑल द फ्रीडम ऑफ लाइफ. 10 साल की उम्र में कार दे दी हाथ में, या 2 व्हीलर दे दिया. 2 व्हीलर नॉट साइकिल बट येस पेट्रोल पे चलने वाला 2 व्हीलर. सो ये लिबर्टी तुम्हें एकदम से नहीं मिलती. हर एक एज में थोड़ी लिबर्टी ऐड कर रहे हैं पेरेंट्स तुम्हारे. उसी तरह से गवर्नमेंट ने एकदम से रेस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल्स, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन, एक ही दिन में हटा नहीं दिए. ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग अवे और रिड्यूसिंग restrictions and controls that were put on, that is imposed on private sector, and started encouraging economic development. That is called liberalization. Learn it for your 1 marker. Main economic reforms related to liberalization which were made in the earlier period were as follows. So first, there was reservation for 18 industries. Learn it. तो पहले तो 18 इंडस्ट्रीज थी जो रिजर्व थी. For the industries other than them, कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज रिमूव. मतलब कि हर बार गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि कंपल्सरी गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती थी. लेकिन अब ऐसे हुआ कि अब थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने रिजर्व की जहाँ पे कंपल्शन रखा है कि भाई गवर्नमेंट लाइसेंस लेना है, परमिशन लेनी पड़ेगी. एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वो ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर. तो हर एक फील्ड में गवर्नमेंट ने अलाउ किया प्राइवेटाइजेशन
एक्सेप्ट इन रेलवेज जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन एंट्री नहीं लेगी, एटॉमिक एनर्जी वहाँ पे भी गवर्नमेंट का होल्ड है, एंड डिफेंस। अब रेलवे में तुम कहोगे कि वहाँ पे तो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं तो होगा ही, येस देयर इज, लेकिन हम बात करें कि रेलवे कौन हैंडल कर रहा है ऑल ओवर द कंट्री, दैट्स गवर्नमेंट। हाँ, अंदर के जो पार्ट्स हैं लाइक द एसीज या फैंस एंड वॉश बेसिन्स एंड लाइट्स एंड सीट्स एंड बुगीज एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनीज में बनती है, बट रेलवे का हैंडलिंग दैट इज डन बाय गवर्नमेंट। तो ये 3 गवर्नमेंट ने खुद के पास रखा है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को के लिए ओपन कर दी है। नाउ ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वाज कैंसल। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था हर एक इंडस्ट्रीज को, तो बेचारे लोगों के उनका जो एक इच्छा होती थी, जो एक जोश होता था कंपनी स्टार्ट करने का, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाते थे अपने इस लंबी प्रोसीजर की वजह से। तो देन दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी रीच्ड, लेकिन वो ही गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, राइट। सो डेवलपमेंट स्टार्टेड अप स्पीडिंग अप। प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन टू सेट अप इंडस्ट्रीज which do not cause pollution and are not dangerous for environment was cancelled। पहले तो ये भी था कि छोटी मोटी सारी इंडस्ट्रीज को परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से स्टार्ट करने के लिए, बट देन गवर्नमेंट बहुत लिबरल बन गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही इंडस्ट्रीज हमसे परमिशन लेगी जो थोड़ी बहुत हैज़ार्डियस हो, मतलब कि you can say dangerous like cracker factory, chemical factories, और जो pollution create करते हो they will have to take government permission। उनके अलावा बाकी सबके लिए permission cancel, they can start the companies। अब advantages तो बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन follow होंगे disadvantages also। First let's see what are advantages। As a result of liberalization, private sector got an opportunity to make uncontrolled, unlimited, that is called unconstrained development, which led to more production। अब liberalization की वजह से प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अब नहीं था, पहले तो प्राइवेट सेक्टर में ही कंपनीज कम थी, प्लस गवर्नमेंट का लॉस ऑफ इंटरफेरेंस, तो लोग डेवलपमेंट नहीं दिखा पा रहे थे। बट नाउ ड्यू टू लिबरलाइजेशन ये जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। सो व्हाट हैपेंड, अनलिमिटेड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखने लगी लोगों को जो ओनर्स थे इस फैक्ट्रीज के, और फिर प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। एंड दे न्यू दैट येस वी कुड अर्न अ लॉट, डे एंड नाइट काम करो, नो रेस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट, प्राइस टैग एनी, नो रेस्ट्रिक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लगा क्योंकि लोग अपने खुद के लिए दौड़ने लगे, खुद के लिए भाग रहे थे, अब वो कमा रहे थे खुद के लिए। हाँ, सामने टैक्स भी उतना ही पे करते थे एंड गवर्नमेंट यूज्ड टू डेवलप थ्रू इट। सेकेंड, ड्यू टू एक्सेप्टिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड started getting a boost up and there had been increase in a world import export। मतलब कि लिबरलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन बहुत सारा बढ़ा, तो वही प्रोडक्शन हमारी कंट्री के लिए तो इनफ ही था, उससे भी ज़्यादा हम प्रोड्यूस करने लगे। लेटर ऑन विच वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, और ग्लोबलाइजेशन में भी हमने साथ साथ एंट्री ले ली थी, तो ग्लोबलाइजेशन बूस्टअप हो गया, इंक्रीज हुआ। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दिस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देयर हैज़ बिन इंक्रीज इन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कि पहले हम हार्डली कुछ एक्सपोर्ट करते थे, अब बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने लगे, तो उनकी करेंसी हमारी कंट्री में फ्लो होने लगी, डॉलर्स एंड पाउंड्स एंड यूरोस, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हुआ। अब ये फॉरेन एक्सचेंज का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज, जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में एंट्री ले, अब जब हमें कुछ इंपोर्ट करना है उनसे, तो हमारी इंडियन करेंसी हम यूज़ नहीं करेंगे, राइट। व्हाट विल वी यूज़, वी विल यूज़ उसी कंट्री की करेंसी जो हमारे पास है लॉकर में, वही हम उनको देंगे वापस। तो
रुपए जो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में, इंडियन करेंसी जो ज़्यादा बाहर जाने वाली थी, वो हमने हमारी ही कंट्री में रखी, बिकॉज $1 is equal to a big amount of our Indian currency, £1 is equal to a big amount of our Indian currency. तो वो हमने रोक दिया, राइट. फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होने लगा, जिसके फायदे भी बहुत हैं हमारे लिए. इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन. कंट्री के अंदर की जो हमारी फैसिलिटीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब कि बाहर जो हम देखते हैं, रोड डेवलपमेंट, ब्रिज डेवलपमेंट, रेलवे डेवलपमेंट, न्यू रोड कंस्ट्रक्शंस, and you can say all forms of building construction, yes, and all that development you see outside in the country, वो सारी facilities जो हमें available हो रही है in some form or the other, उसका development बढ़ने लगा हमारी country में. But yes, as I told you, there are some disadvantages also. So in spite of decrease in this restriction, monopoly could not be checked. अब monopoly, what do you mean by it? मोनोपोली मतलब समझ लो कि एक 10 किलोमीटर की रेंज में से दैट देयर इज ओनली वन स्कूल. नेचुरली पेरेंट्स कहेंगे कि 11 या 12 किलोमीटर कहीं दूर जाके या 15 किलोमीटर दूर जाके बच्चों को अगर स्कूल में रखना है तो क्यों नहीं हम हमारे ही एरिया में, चाहे एक ही स्कूल हो, वहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, राइट. इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीवन. क्योंकि वो एक ही स्कूल है, नेचुरली फीस नो लिमिट. अगर कुछ जो उन्होंने प्रॉमिस दिए थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो अगर नहीं मिल रहे, नेचुरली यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लेन. रीज़न, वो एक सिंगल स्कूल है जो तुम्हारे मतलब सारे बच्चों को जो एजुकेशन दे रही है, तो वी वुड प्रिफर दैट स्कूल विच इज़ क्लोजर टू आवर हाउस. तो एक मोनोपोली जब हो जाती है तो एक कस्टमर के लिए चॉइस नहीं रहती. दे हैव टू बाय इट कंपल्सरली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर. एंड कई बार चीटिंग हो जाती है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर्स का. तो एक डिसएडवांटेज है कि मोनोपोली को हम कम नहीं कर सकते. सेकेंड, फोकस हैज़ ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर. दस इंडिया रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड. अब जब गवर्नमेंट ने LPG स्टार्ट किया तो ज़्यादा फोकस आ गया 5-year प्लान में कि भाई चलो फटाफट पॉवर्टी कम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देते हैं, लोगों को बहुत काम देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद बिग इंडस्ट्रीज, अलाउ द पीपल टू स्टार्ट विद बिग इंडस्ट्रीज. अब हुआ क्या, बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी. बट वॉट अबाउट अ एज ओल्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर. आज भी मोर देन 50% पीपल आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर. तो तब तो मोर देन 60-65% पीपल आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर. वहाँ पे तो ध्यान दिया ही नहीं हमने. थर्ड, lots of inequality, that is disparity, was seen between rich and the poor, or in the distribution of income we could see inequality. And fourth, because of increase in imports and decrease in export, foreign debt increased. कर्ज बढ़ने लगा हमारी कंट्री का. रीज़न, अब हम इतने भी डेवलप नहीं थे कि हम बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट करें. हमारा एक्सपोर्ट था क्या, मॉनेटरीली अगर देखें तो पैसे के हिसाब से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या रॉ मिनरल्स, नॉट फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मिनरल्स एंड यू कैन से गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा. लेकिन इसके सामने जो हमारी कंट्री में पैसे हम कमा रहे थे फॉरेन करेंसी में बहुत कम थे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम इतने नहीं हैं. रॉ मिनरल, दैट इज़ मिनरल ओर्स एंड ऑल, वो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा कमाई नहीं होती. बट उसके सामने इंपोर्ट क्या करते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो महंगे थे, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे उनसे जो महंगी थी. तो कर्ज हमारा इंक्रीज होने लगा ड्यू टू ऑल दिस सिस्टम. तो लिबरलाइजेशन एडवांटेजेस भी है, but then there are this few disadvantages. So the whole part of liberalization will be asked for a 3 marker. So write everything on liberalization from its definition till this point. But the moment you ask only for say only disadvantages, तो हर बार जब भी कोई एक टॉपिक पे तुम लिख रहे हो तो उसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखो या उसको एक्सप्लेन करो, then start the main answer. Now
नाउ नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स, जैसे once again I already explained, let's see much in detail about it. It means the process in which ownership and management of industrial units or industries or factories which were under state control, that is government control, is now handed over or transferred to private sector, is called privatization. Very important one, mark. अब once again, privatization means एक ऐसा एक सिस्टम या प्रोसेस जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन करती थी वो अब गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दी प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर में. दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. कई जगह पे गवर्नमेंट ने पूरी इंडस्ट्री हैंड ओवर कर दी, या कहीं पे गवर्नमेंट ने एक जॉइंट सेक्टर में काम किया, दैट इज होल्ड ऑफ गवर्नमेंट मनी इन्वेस्टेड ऑफ द प्राइवेट पर्सन, और इट कुड बी वाइस वर्सा. मतलब कि जॉइंटली भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज काम कर लेते थे. नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज. फर्स्टली, those areas which were reserved for public sector were now open for private sector, like BSNL. सिर्फ पब्लिक था पहले, अब प्राइवेटाइजेशन उसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया, तो आ गए एयरटेल एंड वोडाफोन एंड मेनी अदर्स. सेकेंड, और yes, let me give you one more example. There was only state transportation. फिर आ गया प्राइवेटाइजेशन उसमें भी, that is Volvo bus that takes you from one state to another or from one city to another. Then there are schools also, like government schools, municipality schools, free of cost for the social welfare of the poor children. And on the other hand, we have unlimited, a big amount of fees paid in the private sector school, right? Then there are government hospitals, civil hospital, and then there are 5-star hospitals like Shalby and Sal and many other. तो ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया अब कि भाई प्राइवेट सेक्टर इसमें एंट्री ले सकते हैं. दे कैन स्टार्ट देयर प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो अब तक सिर्फ गवर्नमेंट हैंडल करती थी. सेकेंड, स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज अंडर हिज कंट्रोल, गिव्स द चार्ज ऑफ मैनेजमेंट टू द प्राइवेट कंपनीज, और स्टेट कीप्स मैनेजमेंट इन हिज हैंड एंड गिव्स ओनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी. अभी जो मैंने बताया वाइस वर्सा वाला एग्जाम्पल, कि कई बार गवर्नमेंट पूरी कंपनी हैंड ओवर कर देती है टू द प्राइवेट सेक्टर. सेकेंड, कई में गवर्नमेंट पार्टनरशिप जैसे कर लेगी कि भाई पैसे तुम्हारे, हैंडलिंग मेरा, या कई बार पैसे गवर्नमेंट के लगते हैं, मैनेजमेंट सामने वाली पार्टी प्राइवेट कंपनी कर लेगी. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. नाउ एडवांटेजेस. There is increase in the number of production units in industrial sector. अब जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने निकाल दिए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने देखा कि बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां स्टार्ट हो गई. लाइक 2 कारीगर को लेके किसी ने एक छोटा सा एक शेड डाल के अपना एक वर्कशॉप चालू किया, प्राइवेट वर्कशॉप. धीरे 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 डेवलपमेंट करके एक बड़ी कंपनी बन गई उसकी. किसी ने पहले से एक बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दी. सो इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्शन यूनिट्स भी आने लगे हमारे कंट्री में, प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट्स. सेकेंड, प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन. अब सबसे ज़्यादा प्राइवेट ओनर्स ने कहाँ पे फोकस किया, तो जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगने लगी थी, कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था मशीन और मनी का, और जहाँ पे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनने लगे, जैसे हमारे कंफर्ट के प्रोडक्ट, हमारे यू कैन से लाइक मैनी प्रोडक्ट्स लाइक स्टेशनरी प्रोडक्ट, कपड़ों की फैक्ट्रीज एंड मैनी अदर सच प्रोडक्ट्स पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग. Working capacity of public sector improved due to privatization of public sector enterprise. अब जो पहले गवर्नमेंट के सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दी टू प्राइवेटाइजेशन, तो पहले यहाँ पे वर्किंग कैपेसिटी की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, राइट? ठीक है, होती है, चलती है वाली सिस्टम थी कहीं पे, एज आई टोल्ड यू 10 to 5 की जॉब या 9 to 5 वाली जॉब, राइट? अब खुद कि प्राइवेट कंपनी जब हो गई
तो वहीं पे उसी फैक्ट्री में वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने लगी क्योंकि ऊंची पे मिलने लगी, हाई पे, मोर इनकम वॉज, मोर सैलरी वॉज गिवन टू द एम्प्लॉयज फॉर मोर वर्क, राइट। और दिन रात फैक्ट्रीज चल रही थी अलग अलग शिफ्ट्स में, लोग मेहनत कर रहे थे, तो यू कुड ईजिली सी द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्वालिटी बढ़ने लगी थी प्रोडक्ट की क्योंकि कंपटीशन आ गई मार्केट में। देन डिसएडवांटेजेस, इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यस, अब यहाँ पे जो पावरफुल था उसी की जीत हो रही थी मार्केट में, राइट। पावर सेंट्रलाइज होने लगा बिकॉज ऑफ विच ईविल ऑफ मोनोपोली इंक्रीज, और नेचुरली मोनोपोली ने एंट्री ले ली हमारे कंट्री में बहुत सारे फील्ड में। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। अब लोगों का ज़्यादा फोकस गया बड़ी बड़ी मशीनों वाली इंडस्ट्रीज में, तो ये छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज, होम इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज गॉट द बेनिफिट ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन एंड प्राइजेज हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल। आई टोल्ड यू बिफोर, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है ही नहीं यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज पे, तो जिनको जो प्राइस लगानी थी वो लगा रहे थे। जैसे कि तुम पैंटलून्स में जाओ, या इफ़ यू गो टू वेस्ट साइड, यू गो टू एनी अदर, जैसे स्पोर्ट्स शूज़ खरीदने के लिए तुम रिबॉक या नाइकी अलग अलग स्टोर्स में जब जाते हो, तो वहाँ पे प्राइस टैग देख के तुम ये नहीं कहोगे भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना, थोड़ा तो कम कर दो। नो, and same quality shoes you will see at different price at different shops, right? That is competitiveness. Prices control में रहे ही नहीं private companies में, and this led to a big problem of price rise. And globalization, yes, from here we will continue in our next lecture. So thank you so much. Once again, go through the chapter, keep on revising, and please keep on revising your grammar lectures also. Thank you so much. Take care.